Hello, my dear students. I am Ronak Afroz. Hope you all are safe at your homes. Really, I am missing the classroom learning with your smiling faces. Students, this is your English course book, New as Class 8, and today we are going to study chapter number 3, Earthquake in Assam. Dear students, sometimes nature shows its fury in the form of floods, earthquake, volcanic eruptions, hurricanes, and pandemic also. Just like in present time we are facing what? COVID-19. And we cannot stop ourselves. We cannot stop natural disasters, but we can arm ourselves with knowledge, and it is possible for man to protect not only himself but others as well against the calamities. Come to your textbook now. First of all, we will know about the author of the lesson. And the author of the lesson is Ruskin Bond. Ruskin Bond, born in 1934. He was an Indian author of British descent. Do you know? He wrote his first novel in the age of 17. जब वो 17 साल के थे तभी उन्होंने अपनी पहली नावल लिखी थी. And the novel name was The Room on the Roof. Since then, तब से उन्होंने he has written over 500 short stories and articles. He was awarded with Sahitya Akademi Award, Padma Shri, Lifetime Achievement Award. These all the details has given in your paragraph about the author column. Come to the story now. The main character of the story was grandfather of the narrator. Okay. And this story talks about the well-known earthquake of Assam and Bengal, which took place on 12 June 1897. 12 जून 1897 को असम एंड बंगाल में एक बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया हुआ था. उस अर्थक्वेक को इस स्टोरी में नरेट किया गया है, बताया गया है. उस इंसिडेंट को इसमें कवर किया गया है. The author Ruskin Bond wasn't born then. उस समय रस्किन बॉन्ड पैदा नहीं हुए थे. But the story talks about his father and grandfather. Now listen. If ever there's calamity, grandmother used to say, it will find grandfather in his bath. Grandfather loved his bath, which he took in a large round aluminium tub and sometimes spent as long as an hour in it, wallowing as he called it and splashing around like a boy. See, अपने आप में बहुत फ़नी भी है ये क्या कि ग्रैंड मदर दादी माँ हमेशा कहा करती थी कि जब भी कोई विपत्ति, कोई आपदा, कोई नेचुरल डिजास्टर्स अगर कभी हो भी जाता है तो क्या होगा, आप तुम्हारे दादाजी कहाँ मिलेंगे? वो अपने बाथ टब में ही मिलेंगे. क्यों? बिकॉज ग्रैंड फादर लव्ड हिज बाथ. वो उनको बाथ टब बहुत ही ज़्यादा पसंद था. उनको पानी में वो घंटों बिता सकते थे. क्यों बिताते थे? क्योंकि उनको पानी में वेलोइंग इज़ अ वर्ड विच मीन्स रोलिंग अबाउट. पानी में मौज मस्ती करना, लोट-पोट करना. उनको पानी में मौज मस्ती करना, लोटना पोटना बहुत ही ज़्यादा पसंद था. एंड स्प्लैशिंग राउंड लाइक अ बॉय. और वो बच्चों की तरह से पानी में स्प्लैशिंग, जैसे कि हाथों से छप छप करते हैं, छींटे मारते हैं, वो छींटे मारते थे, पानी में छप छप करते थे, लोटते पोटते थे. इस तरह से वो पानी में घंटों बिता सकते थे. उनको बहुत ही ज़्यादा पानी में रहना पसंद था. इस वजह से अपने बाथ में वो घंटों बिता दिया करते थे. What does this reveal about grandfather's personality? Now you tell me the answer of this question. कि ग्रैंडफादर की पर्सनालिटी के बारे में ये पैराग्राफ आपको क्या बता रहा है? You will give answer in comment section. I will reply there. Okay. Now come to the next paragraph. He was in his bath during the earthquake that convulsed Bengal and Assam on 12 June 1897. It was so severe then that even today the region of the great Brahmaputra river basin hasn't settled down. Not long ago, it was reported that the entire Shillong plateau had moved an appreciable distance from the Brahmaputra towards the Bay of Bengal. According to the Geological Survey of India, this shift has been taking place gradually over the past 90 years. Dear students, in this paragraph, the author described the severity of the earthquake that took place then, that is 12 June. 1897 को जो भूकंप आया था उसके बारे में, वो किस तरह का था, इस बारे में बताया गया है इस पैराग्राफ में. कि
जब वो भूकंप आया, कन्वल्स्ड इज़ अ वर्ड विच मीन्स which means shook violently to make a sudden violent movement। जब अचानक 12 जून 1897 को अर्थक्वेक आया, पृथ्वी जो है, धरती जो है कांपी है सब बंगाल में। तो उस समय दादाजी उस समय भी कहाँ थे, अपने बात टब में ही थे, अपने बात में ही थे वो, ठीक है। इट वॉज सो सिवियर देन इवन टुडे द रीजन ऑफ द ग्रेट ब्रह्म। वो अर्थक्वेक इतना हार्श, इतना डेंजरस था कि आज भी जो ब्रह्मपुत्र के रिवर बेसिन जो रीजन है वहाँ के, वो आज भी शटल डाउन नहीं हो सके, आज भी व्यवस्थित नहीं हो सके हैं। और जो पूरा का पूरा शिलोंग प्लेट्यू है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हैड मूव्ड, वो एन अप्रिशिएबल डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी पर क्या है, वो धीरे धीरे खिसक रहा है, मूव कर रहा है टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, ब्रह्मपुत्र से बे ऑफ बंगाल की तरफ। और according to the Geological Survey of India, this shift has been taking place gradually over the past 90 years। पिछले 90 सालों से ये क्या है, ये शिफ्टिंग धीरे धीरे हो ही रही है। Had grandfather been alive, he would have added one more clipping to his scrapbook on the earthquake. The clipping goes in any ways because the scrapbook is now with the children. More than newspaper accounts of the disasters, it was grandfather's own letters and memoirs that made the earthquake seem recent and vivid। यहाँ पर in this paragraph the author is just trying to tell us about another characteristic of his grandfather, that is his writing skill। उनके राइटिंग स्किल के बारे में बताया गया है कि वो रिकॉर्ड्स को क्या करते थे, अपने अकॉर्डिंग वो इंसिडेंट को लिखते थे, रखा करते थे स्क्रैप बुक बना करके। तो बताते हैं कि अगर ग्रैंडफादर जिंदा होते तो वो क्या करते हैं, अपने स्क्रैप बुक में वो अर्थक्वेक से रिलेटेड जो उन्होंने स्क्रैप बुक बना रखी थी उसमें वो क्या करते हैं, एक और क्लिपिंग ज़रूर ऐड करते हैं। खैर एनीवेज क्लिपिंग तो चलती ही रहती है क्योंकि अब वो स्क्रैप बुक क्या है, बच्चों के हाथ लग चुका है, बच्चों के हाथ में है। और उस स्क्रैप बुक में मोर देन न्यूज़पेपर अकाउंट्स, न्यूज़पेपर के जो डिटेल्स होते हैं उसकी कटिंग्स जो होती है उससे, उस डिटेल से ज़्यादा ग्रैंडफादर के अपने खुद के लेटर्स एंड मेमोइर्स कहते हैं रिटन रिकॉर्ड्स, हिंदी में कहते हैं संस्मरण। उनके खुद की घटनाओं के जो मेमोरी है उसके उन्होंने जो लेटर्स जो रिकॉर्ड्स बना रखे थे उस उनके स्क्रैप बुक में इतने ज़्यादा थे कि ऐसा लगता था कि अर्थक्वेक क्या है, सीम रिसेंट एंड विविड, बहुत ही जल्द ही की बात लगती थी, बहुत ही सजीव लगता था वो स्क्रैप बुक को देखकर, पढ़कर, सुनकर, उसके बारे में जब हम लोग देखते थे उसको स्क्रैप बुक को, तो ऐसा लगता था कि ये घटना डिजास्टर जो है कितना लाइव फील होता था देखने से ही। For he, along with grandmother and two of their children, one of my father, was living in Shillong, a picturesque little hill station in Assam, when the earth shook and the mountain heaved। जब पृथ्वी कांपी, पर्वत जो अपने जगह से खिसक गए, मूव कर गए, तो उस समय जब ये अर्थक्वेक आया था तो हमारे दादाजी जो थे दादी माँ के साथ कहाँ रहते थे, शिलोंग में, अपने 2 बच्चों के साथ, जिनमें से एक मेरे पिताजी भी थे और शिलोंग में रहते थे। और वो शिलोंग क्या है, अ वेरी पिक्चरस इज़ अ वर्ड विच मीन्स चार्मिंग। इसका मतलब होता है बहुत ही मधुर, बहुत ही सुंदर, ठीक है। शिलोंग क्या था, एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन हुआ करता था असम का। बट नाउ यू नो, ये बहुत पुरानी बात है क्योंकि अब शिलोंग जो है वो असम में नहीं आता है, असम से मेघालय को अलग किया गया है और शिलोंग जो आता है वो मेघालय में आता है, ठीक है। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग को बना दी गई है। और ये घटना कब की है, जब असम और मेघालय, शिलोंग सब एक में हुआ करते थे। नाउ मेघालय इज़ अनदर स्टेट एंड शिलोंग इज़ द कैपिटल ऑफ दैट स्टेट। कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। As I have mentioned, grandfather was in his bath। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आप लोगों को, ग्रैंडफादर कहाँ थे उस समय, अपने बात में ही थे। एंड डिड नॉट हेयर द फर्स्ट रम्बलिंग, जो पहली रम्बलिंग साउंड होती है, हैवी साउंड, रम्बलिंग को बोलते हैं हैवी, बहुत ही तेज़ साउंड जो होती है पहली भूकंप की, वो नहीं सुन सकें क्योंकि वो अपने बात जब में ही थे। बट मदर वॉज इन द गार्डन hanging out or taking in washing, she couldn't remember which। ग्रैंडमदर गार्डन में थी और उनको ठीक से याद नहीं पड़ता कि वो क्या कर रही थी। when suddenly the animals began making a hideous noise।
जब वो गार्डन में ही थी, जब जानवर स्टार्ट कर देते हैं क्या, मेकिंग हीरियस नॉइज, हीरियस मतलब होता है अनप्लीजेंट, बहुत ही अनप्लीजेंट नॉइज़ करना जो एनिमल्स वे स्टार्ट कर देते हैं। और श्योर इंटीमेशन ऑफ नेचुरल, देखो इसको बोलते हैं श्योर इंटीमेशन। इंटीमेशन मीन्स हिंट, जो वो अनप्लीजेंट नॉइज़ क्रिएट कर रहे होते हैं जो एनिमल्स जो थे, वो एक क्या था, एक तरह का हिंट था कि कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर्स आने ही वाला है। फॉर एनिमल्स सेंस, जैसा कि ऐसा कहा जाता है कि एनिमल्स के पास सेंस होता है, वो अप्रोच, वो समझ जाते हैं कि कोई अर्थक्वेक या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स होने वाला है। मेनली अर्थक्वेक के बारे में ऐसा मतलब इंट्यूशन है लोगों का कि ये जो एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो इंटीमेशन दे दिया करते हैं पहले ही इस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में। उनके पास ह्यूमन से ज़्यादा इन चीज़ों को फील करने का सेंस होता है। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि बताया गया है कि किस तरह से एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं इंटीमेशन दे रहे हैं अर्थक्वेक के बारे में। द क्राउस और टुक wings, wheeling wildly overhead and crying loudly. The chickens flapped in circles as if they were being chased. देखो, the crows all took wings. कौवे क्या थे, crows जो थे वो क्या करते हैं, wheeling कहते हैं, it's rotation where we were wheeling, yeah, wheeling कहते हैं कि to fly round in a सर्किल, आकाश में चक्कर लगाना गोल गोल, ठीक है। तो ऐसा लगता है जो क्रोज थे वो आसमान में, आकाश में क्या करते हैं, सर के ऊपर काँव काँव बहुत तेज़ से काँव काँव करते हुए वो क्या करते हैं, गोल गोल चक्कर लगाने लगते हैं। और जो चिकन, जो चूजे थे, फ्लैप्ड इन सर्किल, वो भी गोल गोल नाचने लगते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं अपने पंखों को। एज इफ दे वर बीइंग चेज्ड, ऐसा लगता है जैसे वो शिकार के लिए कोई उनका पीछा कर रहा हो, वो भगने के लिए, छुपने के लिए अपने आप को फ्लैप्ड, अपने पंखों को फ्लैप्ड कर रहे हैं, फड़फड़ाने लगते हैं। 2 dogs सिटिंग इन वरांदा, 2 डॉग्स जो थे वो बैठे हुए थे वरांदा में। सडनली जम्प्ड अप एंड रन आउट विद देयर टेल्स बिटवीन देयर लेग्स, वो अपने पूँछ को, अपने पैरों को, अपने पूँछ को क्या करते हैं, अपने पैरों के बीच में घुसाते हुए वो ऐसे अचानक जंप करके भागने लगते हैं बाहर की तरफ। विद इन हाफ अ मिनट ऑफ हर नोटिसिंग द नॉइस मेड द एनिमल्स ग्रैंड मदर हर्ड अ रैटलिंग रम्बलिंग नॉइज लाइक द अप्रोच ऑफ अ ट्रेन। विद इन हाफ अ मिनट, अभी कुछ ही मतलब आधा ही मिनट हुआ था ये सब नोटिस करते हुए, इस नॉइज़ को, इस शोर को, एनिमल्स के द्वारा जो नॉइज़, ये शोर जो हो रहा था उसको नोटिस किया। अभी आधा ही मिनट हुआ था कि ग्रैंड मदर ने सुना रैटलिंग साउंड, वो एक बहुत ही तेज़, पहले ही बताया मैंने, रैटलिंग रैपिड साउंड को बोलते हैं, तेज़ आवाज़ को कहते हैं, बहुत ही तेज़ आवाज़ वो सुनती हैं। रम्बलिंग कहते हैं हैवी साउंड, गड़गड़ाहट कह सकते हो, गड़गड़ाहट की आवाज़ को सुनती हैं, ऐसा लगता है जैसे कि कोई ट्रेन उनके बहुत ही पास से होकर के गुजर गई हो। दिस नॉइज इंक्रीज फॉर अबाउट अ मिनट एंड देन देयर वाज द फर्स्ट ट्रेम्बलिंग ऑफ द ग्राउंड। अभी एक ही मिनट हुआ था इस आवाज़ को बढ़ते हुए कि धरती पहली बार कांप जाती है, ठीक है। द एनिमल्स बाय दिस टाइम सीम टू हैव गन मड, और जब ये पृथ्वी कांपती है तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि जो जानवर है वो पागल हो गए हों। ट्री टॉप्स लैशेस बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, डोर बैंग्ड एंड विंडोज शुक, खिड़कियाँ कांपने लगती हैं, हिलने डुलने लगती हैं, दरवाजे आवाज़ करने लगते हैं, और पेड़ों के जो ऊपरी भाग, पेड़ जो होते हैं आप कह सकते हो, वो लैशेस बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड्स, आगे पीछे होकर के वो हिलने डुलने लगती है। And grandmother showed later that the house actually swayed in front of her, और swayed means होता है moved from side to side। तो ऐसा लगता है ग्रैंड मदर ऐसा देखती है अपनी आंखों से कि उनको, उनके सामने उनका घर क्या है, आगे पीछे ऐसा लगता है उनको हिल डुल रहा हो। शी हैड डिफ़िकल्टी इन स्टैंडिंग स्ट्रेट, उनको खड़े होने में, सीधे खड़े होने में वो मुश्किल, कठिनाई फील करती हैं। दाउ दिस कुड हैव बीन द ड्यू मोर टू द ट्रेम्बलिंग ऑफ हर नीज देन टू द ट्रेम्बलिंग ऑफ द ग्राउंड। ये पृथ्वी के कंपन से ज़्यादा उनके खुद के पैरों में जो कंपन हो रही थी उसकी वजह से वो सीधे खड़ा होना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि किस तरह से, सी यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इट इज़ अ वेरी गुड इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिनेरियो। कैसे आसमान में कौवे जो हैं काँव काँव करते हुए वो गोल गोल घूम रहे हैं, और चूज़े जो किस तरह से अपने पंखों को फड़फड़ा रही हैं, और डॉग्स को आप देख सकते हो कैसे अपने
दोनों पैरों को, पूँछों को सब एक जगह इकट्ठा करते हुए भागते हुए ऐसे लग रहे हैं, जैसा लग रहा है कि वो क्या कर रहे हैं उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। और दादी मस्त ऐसी ही खड़ी हैं, वो खड़े भी नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। इस तरह का ये जो सीन दिया हुआ है, पिक्चर दिया हुआ है, ये उस जो अभी आपने पैराग्राफ पढ़ा है उसका बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन पिक्चर के थ्रू है। आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। This is all for today. We will continue next paragraph in next video. Keep watching, keep learning. Thank you.